हाँ तो फ्रेंड्स, आजकल पेटीएम के बारे में न्यूज़ सभी को पता होगी। वैसे सभी को पता होगा कि पेटीएम को रोक लगाया है आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई ने क्यों रोक लगाया है और उसकी पेटीएम में क्या प्रॉब्लम है और किन किन चीज़ों को लेकर रोक लगाई गई है, तो इसका पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको आरबीआई की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी दिखाऊंगा और उसका इंग्लिश में है वो पीडीएफ, और उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। उसमें क्या क्या आरबीआई ने बताया है, पेटीएम को किस चीज़ को लेकर बैन किया है, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे और जो भी हमारे दोस्तों के जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो व्हाट्सएप में चलता हूँ मैंने एक पीडीएफ रखी है वहाँ पर, जो आरबीआई की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो इसमें चलेंगे। PR 1774 PPPL PEDADC 4726C41F7A65307307C63180E2B1.PDF 1 page bullet 271 KB bullet PDF। ये PDF है, तो इसको मैं ओपन करूँगा। Open with double tap to Drive Installer Drive PDF viewer column 2। इसको मैं ड्राइव में ओपन कर रहा हूँ। Installer Drive page 101 zoom 1 doc 2 find add the drop more options but annotation button January 31st 2024 action against तो इसके पहले मैं स्पीड कम कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए। Speech rate 133%. Speech rate 109%. January 31st 2024 action against PayPal Payments Bank Limited under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949. In press release dated March 11th 2022, the Reserve Bank of India, in exercise of its powers under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949, had directed PayPal Payments Bank Limited PPBL or the bank to stop onboarding of new customers with immediate effect. 2. The Comprehensive System Audit Report and subsequent compliance validation report of the external auditors revealed persistent non-compliances and continued material supervisory concerns in the bank, warranting further supervisory action. 3. Accordingly, in exercise of its powers under Section 35A of Banking Regulation Act 1949, and all other powers enabling it in that behalf, the Reserve Bank of India has today directed PPBL as below. I. No further deposits or credit transactions or top-ups shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruments, wallets, FASTags, NCMC cards, etc. after February 29th, 2024, other than any interest, cashbacks, or refunds which may be credited any time, i.e. withdrawal or utilization of balances by its customers from their accounts including savings bank accounts, current accounts, prepaid instruments, FASTags, national, common mobility cards, etc. are to be permitted without any restrictions, up to their available balance. E. No other banking services, other than those referred in IE above, like fund transfers, irrespective of name and nature of services like EAPS, IMPS, etc., BBPOU and UPI. Facility should be provided by the bank after February 29th, 2024. If the nodal accounts of 197 Communications Limited and PayPal Payments Services Limited are to be terminated at the earliest, in any case not later than February 29th, 2024. V. Settlement of all pipeline transactions and nodal accounts in respect of all transactions initiated on or before February 29th, 2024 shall be completed by March 15th, 2024 and no further transactions shall be permitted thereafter. Yajish Dale. Press release. 2023-2024/1774 Chief General Manager. Sakashini. Press release. भारतीय रिजर्व बैंक का Reserve. तो ये इतना ही था, ये इसमें बताया गया है। तो अब इसी की हिंदी मैं आपको
सुनाता हूँ। जिसको इंग्लिश में समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसके लिए हिंदी में बताता हूँ आगे। हिंदी में आपको सुनाता हूँ। तो चलते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज की तरफ। WhatsApp. हिंदी में क्या बताया गया है, WhatsApp. इसी का Double tap. इंग्लिश का ही Press प्रकार ट्रांसलेट है Read हिंदी more. में। Read more. तो इसको भी Double सुनते हैं tap to ध्यान से activate. क्या कहा गया है। प्रेस प्रकाशनी प्रेस विज्ञप्ति। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। www.rbi.org.in/Hindi. वेबसाइट। www.rbi.org.in. जोड़ ईमेल। holdurbi.org.in. संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग फोर्ट मुंबई -400,001। संचार विभाग ये केंद्रीय आरबीआई कार्यालय की शहीद भगत एड्रेस सिंह वगैरह और मार्ग इसमें फोर्ट ईमेल मुंबई ईमेल आईडी 400,001 फोन और आरबीआई का ही 02222660502. ये फ़ोन नंबर है। 31 जनवरी 2024। बैंकिंग की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अब यहाँ से खिलाफ सुनिए कार्रवाई। जी। विनियमन अधिनियम 1949। 11 मार्च 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL या बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था। तत्काल प्रभाव 2 व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की बात की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई। 3 तदनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज PPBL को निम्नानुसार निर्देशित किया है। I-29. फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई और जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी समय श्रेय दिया गया I. इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनकी उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है। E. ऊपर I. में संदर्भित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा जैसे फंड ट्रांसफर, AEPS, IMPS इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद BBPOU और UPI सुविधा फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। 29/2024 If. 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त किया जाना है। V. सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान के संबंध में 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन 15 मार्च 2024 तक पूरे किए जाएंगे और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति 2023-2024/1774. योगेश दयाल मुख्य महाप्रबंधक। Double tap and hold to react and select messages. Links available. Back. हाँ तो फ्रेंड्स, तो ये था पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको वीडियो? थोड़ा संक्षेप में मैं बता दूं, जो आरबीआई है वो सभी इन चीज़ों की नेट बैंकिंग और बैंकिंग, ये जो भी बैंक में जो भी लेन देन होता है ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, तो ये सभी चीज़ों की निगरानी रखता है आरबीआई बैंक। जैसे कि उसमें बताया गया है, बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। और आरबीआई को कुछ विशेष रूल्स हैं जो आरबीआई को मिले हैं, जो विशेष कानून है। तो अब जैसे निगरानी मिली है तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ विशेष नियम कानून तो मिलेंगे ही। तो उसी का प्रयोग करके जो पेटीएम है, फ़िलहाल उसको कुछ चीज़ें उसमें रोक लगाई गई हैं, जो 29 फरवरी तक तो 29 फरवरी तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद उसमें जो आरबीआई ने जो ये नोटिस भेजा है या नोटिस अपने वेबसाइट पे दिया है, इस नोटिस के आधार पर 29 फरवरी 2024 के बाद तो वह पेटीएम पर जो भी इसमें कार्य बताए गए थे अभी जो हमने सुना अभी, तो वे सभी कार्य 29 फरवरी के बाद नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, थोड़ा हो सकता है मैं इतने से समझा ना पाया हूँ, फिर भी
मुझे आप कमेंट कर सकते हैं क्या कमी रह गई, क्या हुआ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक तो ज़रूर है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कोई कमी रह गई तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।